Welcome students. Today we'll do quadratic equations. Under that we will study the quadratic formula. One of the very important method to solve a quadratic equation. Okay. The formula that we have is, if we have a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. If this is the quadratic equation, then two methods we have already studied. One is a middle term split, second is completing the square. In the third case, instead of solving it that way, you can directly apply the formula. The formula is x equal to it's minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a. You can directly apply this formula to find out the different values of x. Say, here I have written plus minus. So one value, that quadratic equation will have two solutions. First solution will be minus b plus root b square minus 4ac divided by 2a. The second formula is x2 equal to minus b minus root b square minus 4ac divided by 2a. These are the two formulas which you can directly apply. What is a, b and c? A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the coefficient constant. Okay, you have to take care of the sign. Here I have taken all of them positive. If somewhere it is negative, let us say it is 3x square minus 5x plus 6 equal to 0. Then a will be 3, b will be minus 5 and c will be 6. You should take care of the sign. Accordingly, you should substitute in the formulas. This is a direct application. First, I'll tell you how we got these formulas, the derivation of these formulas. You should by heart these formulas. Only one if you know, then once you should put plus, second value you should put negative. Okay. Let's first derive this formula. How we got this? Part of it already I have told you when we were doing completing the square methods. Okay. In this one, first step, remove this a, divide the whole equation by a. So I will get x square plus b by ax plus c by a equal to 0. This is the first step. Means I divide the whole equation by the coefficient of x square. First, second, then using completing the square method, I should make complete square out of it. So b by a है तो मुझे ये क्या लेना है, b by 2a. आप लास्ट वीडियो देख सकते हो ये हमने क्यों किया. जो भी x का कोफिशिएंट है उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है एंड देन यही वाला टर्म मुझे वापस माइनस करना है. ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया क्यों मुझे माइनस करना है इसको. सो गो फॉर दैट. c by a इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट स्टेप, ये पूरा का पूरा आपको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. सो दिस इज x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, b अपॉन स्क्वायर कर लो, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा. ये प्लस c बाय a था तो ये हो गया माइनस c बाय a. नेक्स्ट स्टेप, पूरे का एलसीएम ले लो. एलसीएम क्या आएगा इसका, 4a स्क्वायर. सो एलसीएम विल बी 4a स्क्वायर. ये b स्क्वायर ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस 4ac. ठीक है, ये समझ में है मेरा. ये 4ac कैसे है, ये a है, मुझे अगर इसको 4a बनाना है, स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई करेंगे. देन इट इज 4ac और नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर. देन यू कैन टेक द एलसीएम. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप. अब आपका आ गया x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. अब मुझे अगर ये स्क्वायर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है, एक बार ये वैल्यू प्लस हो जाती है और एक बार ये वैल्यू माइनस हो जाती है. ये आप ध्यान रखो, कभी भी किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक बार वैल्यू प्लस होती है, एक बार वैल्यू माइनस होती है. तो एक बार प्लस ले लो. सो x प्लस b बाय 2a प्लस वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में आ गया. 4a स्क्वायर का रूट क्या होता है, 2a. ठीक है, पहले हम प्लस फर्स्ट केस ले रहे हैं. ठीक है, इसके बाद ये क्या आएगा, आगे सॉल्व कर लो. दिस इम्प्लाइज ये प्लस है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा. x इक्वल टू माइनस b बाय 2a प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय 2a। एलसीएम ले लो, 2a कॉमन है, तो दिस इज माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है x की वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही अगर इस टाइम नेगेटिव यहाँ पे माइनस ले लोगे तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी का पूरा सेम है। तो आपका सेकेंड फॉर्मूला क्या बन गया, x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज x2, सेकेंड वैल्यू ऑफ x। तो ये दो फॉर्मूलाज है जिनका डेरिवेशन मैंने आपको बताया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आपको डेरिवेशन शायद ना आए एग्जाम में, बट ये फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रखना है। कभी आपको डिफिकल्ट हो रहा है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे, रूट्स के क्वेश्चंस है, तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। यू शुड नो दिस फॉर्मूला थॉरोली। नाउ नेक्स्ट, अब इस रिजल्ट्स के बेसिस पे आपकी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर रूट में नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करें, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला इज, this is the general formula, quadratic formula, x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। अब देखो होगा क्या, अगर मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव हुई b square minus 4ac, तब तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्योंकि पॉजिटिव का रूट पॉसिबल है। नेगेटिव हुआ तो नहीं निकाल पाओगे। ये अगर जीरो हुआ तो अलग केस आएगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। आपको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, एंड बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज वी विल हैव थ्री डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नाउ ऑनवर्ड्स आई कॉल इट, मैं डी बुलाऊंगी उसको, अगर ये आपका ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के दो रूट्स आएंगे, एक बार प्लस आएगा एक बार नेगेटिव आएगा, है ना, और प्लस माइनस आएगा तो आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो हम बोलते हैं रूट्स, रूट्स मतलब x की वैल्यूज जो है वो रूट्स क्या है, आर रियल एंड डिफरेंट। मैंने क्यों लिखा रियल एंड डिफरेंट, रियल का मतलब आप उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, रूट में नेगेटिव होते तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो अनरियल है, नॉट रियल। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व कर सकते हो, देन इट इज रियल एंड डिफरेंट। व्हाई आई एम कॉलिंग इट डिफरेंट, बिकॉज एक बार आप प्लस वैल्यू लोगे एक बार माइनस वैल्यू लोगे, तो एक्स की दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब सेकेंड केस पे आ जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया तो जीरो का रूट क्या होता है, जीरो, तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा चला गया ना। अगर ये इसमें हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन 2 है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो जो दोनों रूट्स होंगे हम क्या बोलेंगे, रूट्स रियल तो है मगर रूट्स क्या है, सेम, बिकॉज ये प्लस माइनस ही तो आपको दो अलग अलग रूट्स दे रहा है। अगर वो प्लस माइनस ही नहीं है, उसके साथ में जीरो है, प्लस माइनस जीरो, तो दोनों रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी अपॉन 2a एंड दे विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। आपको दोनों वैल्यू अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है। नाउ थर्ड केस, अगर ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की आपकी लेस देन जीरो है, नेगेटिव वैल्यू है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना, आप सिंपली आप आंसर लिखो रूट्स आर नॉट रियल, क्योंकि अभी आपने नहीं सीखा है कि नेगेटिव का रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन योर सीनियर क्लासेस 11-12 में आप सीखोगे कि नेगेटिव अगर रूट में है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। टाइमिंग यू लर्न, इफ रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप लिख दो द रूट्स आर नॉट रियल। So these are the three different cases based on the discriminant d value, that is b square minus 4ac। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसका हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। Let's take an example. If it is 3x square minus 5x plus 2 equal to 0, आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले चेक कर लेना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो d निकालो, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकालने से पहले मुझे ये बताओ a की वैल्यू कितनी है,
A 3 है, B इज -5 और C आपका 2 है। ये वैल्यूज पहले यहाँ लिख लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके वैल्यूज आप रिप्लेस कर दो। b की जगह पे क्या लिखोगे? -5, 4, a की जगह पे 3, c की जगह 2, सो दिस इज 25 माइनस 24 कितना आ रहा है? 1। तो आपका d क्या आ रहा है? इट इज ग्रेटर देन 1। अगर d ग्रेटर देन 1 है देन इट इज अ फर्स्ट केस। फर्स्ट केस आपका कौन सा था? रूट्स आर रियल। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे जो आपको सॉल्व करनी है। ये बहुत छोटा सा मेथड है, इससे फटाफट सॉल्व हो जाता है। राइट डाउन द फॉर्मूला ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, एक बार प्लस ले लो, वैल्यू डाल दो। माइनस बी की जगह पे क्या है? 5, -5 था तो माइनस ऑफ -5 दिस विल बी +5। या ऐसे लिख लो पहले। रूट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? b स्क्वायर माइनस 4ac 1 आ रहा है, डाल दो ऐसे ही। a की वैल्यू 3, सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। माइनस ऑफ -5 +5, 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है, तो प्लस -1 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। तो x1 कितना आएगा? एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। 5 + 1 अपॉन 6, 6 अपॉन 6 दैट इज 1। और x2 5 माइनस, अब की बार 1 लिया नेगेटिव मैंने, तो दिस इज 4/6 दैट इज 2/3। तो आपके दो वैल्यूज आ गए, x इक्वल टू 1 और दूसरा वैल्यू आ गया 2/3। अ वेरी इजी मेथड। देखो आपने बाकी जो भी मेथड्स किए उन मेथड से ये सबसे इजी है। तो अगर एक बार आपको फॉर्मूला मालूम है तो डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं कभी कभी आपको मिडिल टर्म की वैल्यूज नहीं मिलते या बहुत बड़े नंबर्स हैं, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रूट्स, या फिर वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी थोड़ा टफ जा रहा है। सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। या थॉरोली फॉर्मूला को याद कर लो, सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। बस इसमें याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना चाहिए, वो नेगेटिव पॉजिटिव या फिर 0 है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिंप्लीफाई। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके।